Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome, sir. Last time I was revising chapter 3. Uh, Assalamu alaikum, sir. in chapter 3, one of the most important things was a discussion on orthogonality, in which we developed a method of obtaining two mutually orthogonal or perpendicular vectors in the direction of a particular given vector with the help of another vector. We studied that under the heading of orthogonal projection. Orthogonal projection of vector u in the direction of vector A. Our results were two orthogonal components of u, W1 and W2, one which is in the direction of A and one which is perpendicular to A. This tool is an important tool and we will be using it later on whenever we are required to obtain two orthogonal components of any given vector in a particular, using a particular vector or a particular direction. So W1 का जो formula हमने derive किया, that was this, which is called the projection of u in the direction of A, obtained using u dot A upon norm of A square. जिस direction vector ले रहे हैं उसके norm का square denominator में और वो vector this is a scalar, so उसकी vector का scalar multiple. And W2 is a vector which is obtained by u minus as u is equal to W1 plus W2. So W2 which is perpendicular to W1 is obtained as u minus W1 and W1 is given by this. These are the two important things that we studied in the under the heading of orthogonality. We discussed some examples. Particularly this example, we are given a vector u and we have to obtain W1 and W2 in such a way that W1 is in the direction of A, which is a projection of u in the direction of A. So we solved using the formula u dot A upon norm of u square. The vector W1 and W2 is u minus W1, so this is it. So in continued revision of this, I consider this to be the most important result. Rest of the results that we discussed are very trivial. Yes, we revised our older concepts of distance of a point from a line formula, distance of a point from a plane formula, and we derived it using, re-derived it using orthogonal projection. And then I went on to discuss some exercise questions of 3.3. Now, some people have asked a few questions and I have replied them on WhatsApp. Orthogonality के बाद जो last चीज़ हमने discuss की थी, वो geometry of linear system थी in chapter 3. And that there we learned how to represent a line in R square, a vector form which is generalized, not restricted to R square only. The same is used in R3. A point known on the line and a vector known on the line, and we write down the vector equation like this, which if it is passing through some arbitrary point P0, and if it is passing through origin, then x0 is not there. Same is the case with R2, R3, R4. So these are the parametric equations of this kind, and this is another matrix form of the equation of the straight line. Same is done in R3, and we can write it like this.
which is the same as we did before. This is the parametric form, which is it is a symmetric form. This is the vector form of equation of line. Whenever a vector equation is given in terms of one parameter, it is equation of a line in the space that we are working in, whether it is R2, R3, R4, whatever. प्लेन R3 में easiest way is कि आप arbitrary point लें plane का P और एक fixed point लें P naught, and then vector P naught P, which is along the plane, and if you know the normal vector to the plane, then take the dot product of the two and you get the equation of plane, because this dot product is equal to 0. Components of n are A, B, C. The coordinates of P naught, X naught, Y naught, Z naught, and coordinates of arbitrary point P is X, Y, Z. And that makes a general linear equation in 3 unknowns that we have been studying. This is by learning solving system of linear equation. But there is another way of obtaining equation of plane, which is two parametric form when two vectors of the plane are known, that we have studied at some other stage. Line segment किस तरह represent किए जाते हैं किसी भी space में Rn, for example, ये हमने discuss किया था. फिर हमने आखिर में dot product form of linear system of equations discuss किया था. Every linear equation that we write down in Ax is equal to B, on the left hand side we have a dot product. Dot product of the coefficients, known coefficients, and the vector of the unknowns. So R1 dot x is equal to V1, R1 dot x is equal to V2, etc. So this becomes the vector form of the system of equation of line, which can be combined into a single system, x dot Ri or Ri dot x, where Ri is representing ith row vector of matrix A. अगर right hand side constant 0 हो तो homogeneous system बन जाता है, and that makes the row vector of A perpendicular to the solution vector x that will be obtained when you solve system. And here I discuss an example that Ax is equal to 0. अगर एक ये system है, उस system को हम solve करेंगे, and we see that x2 is a free variable, x4 is a free variable, x5 is a free variable, x6 has a fixed value 0, and x5 is free, x4 is free, x2 is free, whereas x3 written in terms of the unknown, the free parameters, x1 written in terms of free parameters. So the solution vector is this. Then we consider the row vectors of the given system of linear equation. In row vectors का dot product solution vector, यानी ये general solution of vector जो है, इससे लिया तो we verified that our पहली row in the matrix A taken as row vector, dot product with the solution vector, and we obtained that they are all perpendicular to, all row vectors of A are perpendicular to the solution vector. Two parametric form of vector equation of a plane. If you know two vectors in the plane, V1 and V2, then the equation of plane can be written in two parametric form. V1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, V2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और फिर ऐड करें, तो we'll see that this scheme develops points on the plane. Vector V1 multiplied by a number, vector V2 multiplied by a number, positive number इस तरफ जाएगा, negative number से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ जाएगा, तो प्लेन के पॉइंट्स जो हैं वो इस सम T1 V1 प्लस T2 V2 से जनरेट होते हैं, और कोई नॉन फिक्स पॉइंट है P नॉट उसका वेक्टर. दिस इज द टू parametric vector equation which represents a plane in any space, R3, R4, R5, or whatever. And we discussed some examples for the same. Whenever we are given a system, we are given a point and a vector along a line, how to write down the vector equation, how to write down the parametric equation. Given a point in the plane and two vector containing V.
ये R3 में इक्वेशन ऑफ लाइन है, point given, vector given along the line. This is the vector equation and this is the parametric form. अगर आपको एक प्लेन दिया हुआ है तो उस प्लेन की टू पैरामीट्रिक फॉर्म हासिल करने के लिए हम इस प्लेन की इक्वेशन को सिस्टम इक्वेशन समझेंगे. सो वन इक्वेशन इन थ्री अननोन्स, तो दो वेरिएबल्स फ्री होंगे. दैट इज y इज इक्वल टू सम पैरामीटर t1, that is equal to some parameter t2. So x1 is written in terms of the constant 5, x and y taken on this side, so 5 plus t1. So we have this vector form of equation of plane that involves two parameters. It's passing through point 5, 0, 0, and these two vectors are along the plane. नंबर से इन वेक्टर्स को आर्बिट्री नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते चले जाएं और p नॉट में ऐड करते चले जाएं, तो you will keep on getting different points on the plane. We can have the situation in R4 as well. There is a point that is along the plane, and we want a line through origin. So that means vector form of equation of line, x is equal to x naught plus t times. Four components हैं, so now the equation of line that we obtain is this vector form, which will have 4 coordinates or components, and this is the parametric form. In R4, a plane, if you want to obtain a plane, a point is given on the plane, and the plane contains these two vectors. So vector equation of the required plane is simply this: point given ka position vector plus scalar multiplied by v1 plus scalar multiplied by v2, and that becomes vector equation of the plane in R4, which can be written in parametric form. Pehla component x is equal to 2 plus t1 plus t2 0. So this is the x coordinate of any point on the plane in the question. For x2, we take second coordinate, -1 is equal, -1 plus 5t1 plus 7t2, etc., etc. So this is the way the parametric equations are developed. Here when ax is equal to b और ax is equal to 0 के solutions जो हैं compare किए in case where both systems have same coefficient matrix A. So coefficient matrix same है, ये homogeneous system है. Coefficient matrix same है, ये non-homogeneous system है. So when you solve the non-homogeneous system, you get this result as a solution vectors, and if you solve the homogeneous system, then you get this result. The only difference is a constant. So we see that solution vector of homogeneous system and solution vector of non-homogeneous system are related by what? कि homogeneous system जो है, this one, इसका solution set, उसमें सिर्फ एक factor add कर दें, which is a particular solution vector of the non-homogeneous system. ये 0, 0, 0, 0, 1/3 कैसे आया? जो arbitrary parameters हैं solution vector में for the non-homogeneous case, इनकी value 0 कर 0, 0, 0 करते हैं. S is equal to 0, T is equal to 0. So you get this particular vector, particular solution of the non-homogeneous system. So whenever two systems are there, one homogeneous, one non-homogeneous, so the solution vectors or solution space of non-homogeneous system is can be obtained from the solution vectors of homogeneous system plus a particular vector solution of the non-homogeneous system. It's an important result and will be used at some stages, not very frequently, but still. I have described this as a theorem given in your book. The general solution of a consistent linear system. ज़ाहिर system को consistent होना ज़रूरी है, वरना solution vectors नहीं आएंगे. So general solution of consistent linear system can be obtained
by adding a specific solution of the non-homogeneous system to the general solution of the corresponding homogeneous. Here is a brief description of that. And then I discussed some problems in exercise 3.4, and I mentioned you to go through question numbers 1 to 28. That was all that I discussed in chapter 3, और आखिर में जो क्रॉस प्रोडक्ट है इस चैप्टर में वो मैं स्किप कर देता हूँ आमतौर पे. यू पीपल नो about cross product, and whenever we will require cross product for any reason whatsoever, so I will consider that cross product. Let me continue this lecture as a revision. So in fourth chapter सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया वो जनरल वेक्टर स्पेसेस था. Can you see this general vector space page heading general vector space? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So I thought that I will proceed from where we left in the chapter 4, but to make my discussion continuous, I am revising some concepts. A vector space is a mathematical structure that is made up of two sets. A non-empty set V, जिसको हम कहते हैं कि वेक्टर्स का सेट है, and another non-empty set F, जिसको कि हम फील्ड या set of scalars कहते हैं. Once we have got two sets, इसमें से एक को हम set of vectors कहें, एक को हम फील्ड कहें या set of scalars कहें, उसके बाद हमारे पास अगला स्टेप जो है वो ये है कि वेक्टर्स को ऐड करने का हमारे पास एक प्रोसेस होना चाहिए, स्केलर्स को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने का एक प्रोसेस होना चाहिए. So with a vector addition and scalar multiplication, we have this kind of a situation कि एक सेट वेक्टर्स का है, एक सेट स्केलर्स का है. दो वेक्टर्स को अगर हम ऐड करें तो रिजल्ट जो है वेक्टर्स ही आएगा. अगर एक नंबर लें स्केलर से और एक वेक्टर लें स्केलर वेक्टर से और स्केलर मल्टीपल बनाएं तो रिजल्ट जो है वो वेक्टर्स में आना चाहिए. तो पहला स्टेप दो सेट्स, एक वेक्टर और एक स्केलर का सेट. दूसरा स्टेप एक वेक्टर एडिशन और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन. जब ये सब कुछ हमें हासिल हो जाए तो उसके बाद हम इस सेट V को कहेंगे कि इट्स अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ स्केलर्स अगर ये 10 एक्सियम्स जो हैं ये सेटिस्फाई हो जो हमने वी हैव लिस्टेड V1, V2, V3 up to V10. And when we have to prove that a given set like R square is a vector space over the field of real numbers, तो मुझे ये 10 के 10 जो हैं एक्सियम्स वेरीफाई करने पड़ेंगे. And we discussed this verification. Okay, all such things are verified. For example, associative property is verified using the addition being associative in the field of real numbers. जिसकी वजह से हम ब्रैकेट की प्लेसेस जो है वो रियल नंबर्स का जो सम आ रहा है इन कंपोनेंट्स उसमें ब्रैकेट की प्लेसेस चेंज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास वेक्टर्स के ब्रैकेट जो है वो U, V और W के जो सम है उसमें जो ब्रैकेट प्लेसेस हैं that are changed because we can change these brackets in the sum of three real numbers. Similarly, the zero vector ऐसा हमारे पास है R स्क्वायर में 0 0 कि किसी भी वेक्टर ऑफ R स्क्वायर में ये ऐड करें तो इस वेक्टर XY में कोई तब्दीली नहीं होगी. Then negative of vectors, तो मुझे ये सारे एक्सियम वेरीफाई करने पड़ेंगे अंडर व्हाट टू सेट्स, वन set of vectors, one set of scalars. So one set of vectors, one set of scalars. Then I have to have, now here we have the vector addition which is usual जिससे कि हम वाकिफ है. And in some examples you have seen that there are unusual addition of vectors or unusual scalar multiplication. तो यूजुअल के तहत तो ये सारे एक्सियम सेटिस्फाई होते हैं. इन द अनयूजुअल केसेस ऑफ वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन
हमें देखना पड़ता है। सिर्फ हमें अगर एक एग्जाम नज़र आ जाए कि यार ये वेरीफाई नहीं होगा, तो सिर्फ उसी को प्रूव कर देंगे भाई ये वेरीफाई नहीं है, लिहाजा वेक्टर स्पेस नहीं। So it is sometimes easier to prove that a given set of vectors is not a vector space under or relative to the vector addition and scalar multiplication defined. मगर यूजुअल के केस में ये सारे एक्सियम वेरीफाई करते हैं। हमने आर स्क्वायर के लिए वेरीफाई कर लिया, सफिशिएंट है। आर क्यूब के लिए भी ऐसे ही होगा, आर फोर के लिए भी ऐसे ही होगा, आर एन के लिए भी ऐसे ही होगा। Then I discuss some examples without going into the proofs. Set of all real infinite sequences. That is a vector space over the set of real numbers. The zero vector only in Rn, यानी R2 में हो, R3 में हो, R4 में, सिर्फ जीरो वेक्टर का सेट ले लें एज सेट ऑफ वेक्टर्स, तो वो भी सारे एक्सियम सेटिस्फाई करेगा फॉर यूजुअल स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर एडिशन, और इस को हम ट्रिवियल वेक्टर स्पेस कहते हैं। Then other examples of matrices are were discussed. For functions, for usual addition of functions and scalar multiplication of functions like this, and we have. फिर मैंने स्पेशल एग्जाम्पल डिस्कस की थी, पानी भी देने बेटा, जिसमें वेक्टर एडिशन को डिफाइन करते हुए हमने, हाँ इससे पहले देखें कि हमने सेट ऑफ वेक्टर्स क्या सेलेक्ट किया है। तो सेट ऑफ ओनली पॉजिटिव रियल नंबर, फील्ड इज अ सेट ऑफ रियल नंबर जिसमें पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। वेक्टर एडिशन डिफाइन करते हुए हमने एक निराला काम किया था, समथिंग अनयूजुअल, के दो रियल नंबर्स के सम से हमने मतलब क्या लिया कि इन दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके। अब चूंकि सेट ऑफ रियल नंबर्स ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स इज this result will always be positive, u into v, and since zero is not involved in the set of real positive real numbers, so this number will never be zero. स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करते वक्त हमने क्या किया कि अगर मैं किसी भी रियल नंबर को किसी पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इंस्टेड ऑफ हैविंग यूजुअल स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हमने कहा कि इसका मतलब है u की पावर k ले लें। अब u की पावर पॉजिटिव k लें, नेगेटिव k लें, दिस नंबर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, दैट मींस स्केलर मल्टीपल इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ p. And then we verified all the axioms, and we saw that all the axioms are satisfied. And then I consider another unusual situation. हमने कहा R square is not a vector space over R with respect to following vector addition and scalar multiplication. अरे भाई वेक्टर एडिशन तो हमने यहाँ यूजुअल लिया, लेकिन स्केलर मल्टीप्लिकेशन गड़बड़ कर दिया, हमने इसको कहा अनयूजुअल। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की अनयूजुअलिटी क्या है कि किसी वेक्टर को स्केलर मल्टीपल से मल्टीप्लाई करो तो उसका वेक्टर का दूसरा कंपोनेंट उड़ जाए, यानी जीरो हो जाए, और पहला कंपोनेंट जो है वो स्केलर के से मल्टीप्लाई, और हम सीधे A10 पे गए। 1 को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से जब भी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे दूसरा कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, पहला कंपोनेंट जो स्केलर के से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 into vector u comes out to be a vector which is not u itself, the vector is changed. इसका मतलब है axiom A10 फेल हो गया। Then we discussed some sort of trivial results कि अगर मैं रियल नंबर से जीरो ले लूँ और आर्बिट्री वेक्टर ले लूँ, तो स्केलर जीरो वेक्टर से जब मल्टीप्लाई होगा तो वो वेक्टर जीरो बन जाएगा। This seems to be a trivial property, but pure mathematicians जो वो they like to prove everything. और इस पहली प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए भाई जो फील्ड का जीरो है, जीरो प्लस जीरो तो जीरो होता है। अब अगर इसमें मैं u स्केलर मल्टीपल ले लूँ तो लेफ्ट साइड पे जीरो प्लस जीरो इंटू यू होगा, राइट साइड पे जो सॉरी लेफ्ट साइड ही कंसिडर कर रहे हैं, जीरो प्लस जीरो इंटू वेक्टर यू। तो एक प्रॉपर्टी है, एक्सियम्स है, उस एक्सियम में ये है कि स्केलर 1 इंटू वेक्टर स्केलर 2 इंटू वेक्टर, तो ये आ जाएगा। अब जीरो प्लस जीरो तो जीरो होता है, तो जीरो इंटू जीरो ऑफ रियल नंबर्स या स्केलर्स इंटू वेक्टर इज इक्वल टू दिस।
Now every vector has a negative in the vector space. तो हमने दोनों तरफ नेगेटिव और वेक्टर स्पेस वेक्टर ऐड कर दिया, एंड देन लेफ्ट साइड पे वेक्टर added to negative of its vector, that becomes 0, and ultimately 0 is equal to this, and finally we come to the result that a scalar into a vector is a 0 vector. So other results here are also proved here. You can go through them yourself. कुछ किताब में है, कुछ किताब में नहीं है. I asked you to go through 4.1, all questions 1 to 27. Anyone want me to discuss any question? एक छोटी सी स्कीम बना लें, क्योंकि हमारी रफ्तार जो है वो मैंने पहले भी कहा था बहुत तेज़ होने वाली है, और लास्ट टाइम मैंने ये रिक्वेस्ट भी की थी कि पिछले 3-4 लेक्चर्स जो हैं उनको आप दोबारा देख लें. आफ्टर दैट जनरल वेक्टर स्पेस मैंने सब स्पेसेस का कॉन्सेप्ट डिस्कस करना शुरू कर दिया था. डिड आई? नो सर, आपने करना था. सब स्पेसेस अभी मैं लेक्चर्स देख रहा था, तो आई anyways I'm considering few things in the subspace concept again. uh, a lot of things are to be developed on the basis of ideas that we discussed in this article. So let me review this. मेरे ख्याल में मैं डिस्कस कर चुका हूँ काफ़ी चीज़ें इसमें, लेकिन मैं इसको रिव्यू. Let us have a vector space V over some field F, and then W is a non-empty subset of the vector space V. If this non-empty subset W itself is also a vector space over the same field, then we say that W is a subspace of V. For instance, मैंने ये डिस्कस की एग्जाम्पल, हमारा वेक्टर स्पेस है R3, एंड जब हम ये कहते हैं ना आमतौर पे लेट V इज इक्वल टू R3 अ वेक्टर स्पेस ओवर R, मैंने यहाँ लिखा है विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और अगर मैं यूजुअल न लिखूं तो यूजुअल ही समझे जाएं, एंड व्हेनेवर आई have to have unusual, then I will particularly mention कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन क्या है. अगर ना मेंशन हो तो इसका मतलब है यूजुअल एडिशन, वेक्टर एडिशन और यूजुअल स्केलर मल्टीप्लिकेशन. सो हमने R3 का एक सबसेट लिया that is points on xy plane only. Now this is a subspace of R3. मुझे देखना है कि यार ये सबस्पेस है कि नहीं. So we want, हमने भी डिफाइन किया है, हमने ये डिफाइन किया है कि सबसेट जो है वो खुद भी वेक्टर स्पेस हो. तो भाई V1 जो डिफाइन किया है हमने यहाँ पे as points on xy plane, which is like R square. So either I go to verify all the 10 axioms on V1 only, or I have some special short methods of verifying whether subspace, whether the subset given is a subspace or not. Can you see this blank page? Yes, sir. Okay. So मेरे पास
Let me go to the whiteboard. Can you see the whiteboard? Yes, sir. Okay. मेरे पास v जो है वो क्या था, R3, और मैंने v1 क्या लिया है? Let me write down briefly xy plane. और मैंने वहां पे कैसे लिखा है सेट की फॉर्म में, all triplets in which z is 0. Trick. For what? Is W1 a subspace of, sorry, V1 is a subspace of V. Trick. पहली चीज, जीरो वेक्टर. क्या जीरो वेक्टर इस सेट में है? यस सर. तो मैंने इससे पहले जो एग्जांपल डिस्कस की थी उसमें बल्कि इसी एग्जांपल में मैंने लेटर ऑन कहा था कि सारी सब स्पेसेस जो हैं दे मस्ट कंटेन द जीरो वेक्टर. तो ये चेक करो क्या ये है, तो हाँ भाई जीरो वेक्टर इसमें है. इसके बाद ये चेक करो, एक वेक्टर लो A1 B1, क्या ये V1 में है? V1 में ऐसे ट्रिपलेट्स हैं जिसका Z 0 है, तो इसका Z 0 है तो ये V1 Yes. में है. एक और वेक्टर लो A2 B2 0, क्या ये V1 में है? तो V1 की प्रॉपर्टी है कि ट्रिपलेट्स वो हैं जिनमें Z 0 है. और उसके बाद देखो कि U1 प्लस U2 इसमें बिलोंग करता है V1 में ही नहीं, तो दैट विल बिकम A1 प्लस A2 पहला कंपोनेंट, B1 प्लस B2 दूसरा कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट 0 प्लस 0. Does it now does this vector sum belongs to the subset or not? Yes sir. तीसरी चीज ट्रिक जो कि अभी थोड़ी देर बाद थ्योरम बन जाएगी कि एक तो लो रियल नंबर और एक वेक्टर ले लो b का. अब देखो कि रियल नंबर को तुम वेक्टर b जिसका z 0 होना चाहिए b1 का वेक्टर, तो स्केलर मल्टीपल यूजुअल है, क्या रिजल्ट आना चाहिए? A8 के B0. क्या z नॉन जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता. मैं आमतौर पर सिर्फ ये तीन चीजें चेक करूंगा एंड दैट विल बी सफिशिएंट कि मेरा सबसेट जो है वो सब स्पेस है कि नहीं. सिर्फ ये तीन चीजें. मैंने कहा थोड़ी देर बाद ये हमारी थ्योरम बन जाएगी. सो लेट अस गो बैक टू दोज. तो इसी तरह V1 जैसे कि अभी हमने देखा कि हमारी ट्रिक पूरी है, उसको सेटिस्फाई करता है, लिहाजा V1 सब स्पेस है R3 का. V2 जो कि एग्जैक्ट प्लेन है वो भी, V3 भी सब स्पेस है. एनी प्लेन थ्रू ओरिजिन ये भी सब स्पेस है. दिस कैन आल्सो बी वेरीफाइड. and this can be verified through this two parametric form. मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, right now it's not very important. A line in R3 through origin ये भी सब स्पेस है. तो ये सारे जो सेट्स हैं they are all subspaces of R3 with respect to usual vector addition and scalar multiplication. and हर दफा हम R3 के दो ट्रिवियल सब स्पेसेस भी ले लें, R3 खुद, क्योंकि R3 खुद भी अपना सबसेट है और वेक्टर स्पेस है, और जीरो वेक्टर सब स्पेस. So a vector space can have many subspaces. Each of these subspaces itself makes a vector space.
A common vector to every subspace in the above example or any example is the zero vector. अगर किसी एक वेक्टर स्पेस के में बहुत सारे सब स्पेसेस ले लूं तो उनका कॉमन वेक्टर जो है वो जीरो वेक्टर होगा. So there is theorem 4.2.1. मैं इसका प्रूफ आपकी एक्सरसाइज के लिए छोड़ रहा हूँ. किताब में पहले मैं, अब मुझे याद आ रहा है ये सारे निशान जो लगे हैं, आई हैव डिस्कस्ड ऑल दीस थिंग्स. So this appears as a theorem कि मुझे किसी सबसेट को सब स्पेस देखना है कि नहीं. Given subset is a vector subset of a subspace of a vector space or not. तो मैंने सबसेट के दो वेक्टर्स को लेना है. अगर उनका सम भी सबसेट में है और उसका स्केलर मल्टीपल भी सबसेट में है तो दिस इज सफिशिएंट वेरिफिकेशन के सबसेट इज अ सबस्पेस. तो मैं अब वो जो जीरो वेक्टर है उसको मैंने अलग से ट्रिक में लिखा था, लेकिन अब वो जीरो वेक्टर जो है वो इस सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर शामिल है, क्योंकि के जो है वो फील्ड का कोई भी एलिमेंट है. दैट मीन्स अगर रियल नंबर की फील्ड है तो जीरो तो इसमें है ही, होगा ही होगा. और जीरो इनटू एनी वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस और सबसेट. जीरो नंबर, जीरो स्केलर इनटू वेक्टर इज ऑलवेज जीरो वेक्टर. तो जीरो वेक्टर इस प्रॉपर्टी के अंदर छुपा हुआ है कि जीरो वेक्टर डेफिनेटली होगा सब स्पेस. इन दोनों प्रॉपर्टीज को ये जो की लिखी हुई है इनको हमने कंबाइन कर दिया. इसको या तो दो प्रॉपर्टीज चेक करें या दोनों प्रॉपर्टीज को कंबाइन करके एक प्रॉपर्टी बनाने हैं. यानी सबसेट के दो वेक्टर्स लिए, फील्ड के दो नंबर्स लिए, पहले नंबर को पहले वेक्टर से, दूसरे नंबर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया और देखा कि रिजल्ट जो है वो सबसेट में है नहीं, है कि नहीं. तो दैट मीन्स इन दो ट्रिक्स के बजाय एक ट्रिक काफ़ी है, लेकिन हम यूजुअली ये दोनों ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं, बल्कि तीनों ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं. क्योंकि अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि हमें एक ऐसा सवाल दिया हुआ है जिसमें सबसेट जो है वेक्टर स्पेस या सब स्पेस नहीं है, तो उसमें अक्सर बेशतर ये होता है कि जीरो वेक्टर नहीं होता. तो इसलिए हम सबसे पहले जीरो वेक्टर. So we will be using that trick that I showed you on the whiteboard. कि मैं जब भी मुझे देखना है कि एक सबसेट जो है गिवन वेक्टर स्पेस का वो सब स्पेस है कि नहीं है, तो पहले जीरो वेक्टर चेक करूंगा, फिर वेक्टर एडिशन चेक करूंगा कि गिवन सबसेट इज क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन और नॉट. फिर इसका मल्टीप्लिकेशन चेक करूंगा. ये तीनों चीज़ें चेक करूंगा. सो नॉट वेरी डिफिकल्ट जॉब. Not every non-empty subset W of a vector space V is a subspace of V. कैटेगोरिकली हमने कह दिया यहाँ पे कि हर सबसेट जो हम बनाएंगे वो, फॉर एग्जाम्पल ये R3 का सबसेट है, लेकिन एक्स वाई जेड क्या है, ऐसे कि जिनका सम 3 है. दैट मेक्स एन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन. नाउ 0 0 0 यानी जीरो वेक्टर इस सेट में नहीं है. जब जीरो वेक्टर इस सेट में नहीं है तो बस W is not a subspace of R. What about this set? 2x plus 3y is equal to 5. क्या जीरो इसमें है? जीरो जीरो रख के देख लीजिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, नहीं हो रही? नहीं है, नहीं. ओके, अच्छा जी. चलो मैं एक और एग्जाम्पल बनाता हूँ. हाँ भाई. Anything that make you realize
Just by looking at these equations, this makes a subset W of R3 it's a plane. This is a subset of R2. Just by looking at these equations which represent points in W, this equation that represent points in W, सिर्फ इक्वेशन को देख के बता सकते हैं कि ये सब स्पेस है कि नहीं है. सर इसमें जीरो No, वेक्टर sir. नहीं है. नो. अगर इक्वेशन तुम्हें एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स में एक इक्वेशन लिखी हुई है और उस इक्वेशन वो इक्वेशन नॉन होमोजेनस है, वो इक्वेशन नॉन होमोजेनस है, इसका मतलब ओरिजिन से नहीं गुजर रही. ओरिजिन से नहीं गुजर रही का मतलब जीरो वेक्टर नहीं है इसके अंदर, खत्म हो गया, ये सब स्पेस नहीं हो सकता. सर ये W belongs to R2 नहीं होना चाहिए. यस होना चाहिए. Thank you. So going back to our examples further. Okay, we make a subset of R2 which is made up of points such that X and Y are both positive. That makes the first quadrant. क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओरिजिन है? नो सर. No, sir. खत्म हो गई बात. लेकिन हमने यहाँ पे पहले बात किस वजह से खत्म की कि हमने इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई पॉइंट लिया या कोई वेक्टर लिया, फॉर एग्जांपल 2 3, उसका नेगेटिव लिया. नेगेटिव इसमें नहीं है, इसका मतलब है देयर आर अदर वेज टू थिंक अबाउट. लेकिन द सिंपलेस्ट इज का जीरो वेक्टर चेक करें. अगर जीरो वेक्टर नहीं है तो बाकी किसी कॉम्प्लिकेटेड चीज में जाने की जरूरत नहीं. फॉर एग्जांपल दिस, कि वेक्टर स्पेस की एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर वेक्टर का कोई एलिमेंट आपके पास है तो उसका नेगेटिव भी वेक्टर स्पेस में होना चाहिए. अगर नहीं है नेगेटिव उसका तो वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा. ये वेक्टर स्पेसेस ऑफ मैट्रिसेस एंड देयर सब स्पेसेस. मैं इस पर टाइम नहीं लगाना चाह रहा, पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं चाह रहा. मैट्रिसेस आप काफ़ी पढ़ चुके हैं. अगर आप सिर्फ इन आर्टिकल्स को पढ़ें किताबों से या मेरे नोट्स में से पढ़ें, you will get to know things. Functions and polynomials. Whenever I'll think that I need to discuss function spaces, I'll discuss that. But when we discuss function spaces, तो हम usual addition of functions और usual scalar multiplication of functions ही लेते हैं, चाहे वो arbitrary functions हो, define और सेट हो, जो डोमेन जिस ऐसे फंक्शन जिनका डोमेन जो है वो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर. पोलिनोमियल्स भी ऐसी फंक्शन है जिनका डोमेन पूरा सेट ऑफ रियल नंबर होता है. तो पोलिनोमियल्स जो हैं यूजुअल अलजेब्रिक एडिशन और यूजुअल अलजेब्रिक स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो अगर आपके पास एक पोलिनोमियल ये है और एक पोलिनोमियल ये है, जब तुम दो क्यूबिक पोलिनोमियल को ऐड करोगे तो रिजल्ट क्यूबिक पोलिनोमियल ही आएगा. 4th डिग्री पोलिनोमियल नहीं आ सकता, 2nd डिग्री आ सकता है. मगर हमने यहाँ लिखा हुआ क्या, दिस इज अ सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स विद डिग्री लेस देन इक्वल टू 3. फॉर एग्जांपल मैं 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एक पोलिनोमियल ले लूँ और एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो ये P1 हो गया. ये I should not write it as P1, I should write it as vector P1 because I am treating elements of this set of polynomials as vectors. अब मैं इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करूंगा तो रिजल्ट क्या होगा?
तो जब मैंने ऐड किया तो 1 प्लस 2x क्यूब आई। और अगर मैं v3 ले लूँ जो कि 1 माइनस x3 हो, ये भी थर्ड डिग्री पोलिनोमियल लेता है। तो व्हाट विल बी 1 प्लस v3? v1 प्लस v3, so 2 minus x, 1 plus 1 2 minus x plus x square, x cube minus x cube. So we get a second degree polynomial, which is also an element of this. So जब भी दो polynomials हम कंसीडर करेंगे of degree at most 3 ऐड करेंगे तो we will always obtain a polynomial of degree at most 3 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों पोलिनोमियल्स में पावर मैक्सिमम अननोन की जो है 3 है, लिहाजा फोर्थ पावर तो आ ही नहीं सकती। तो पोलिनोमियल की एडिशन जो है वेक्टर यूजुअल वेक्टर एडिशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी यूजुअल वेक्टर, एंड वी कैन वेरीफाई ऑल द 10 एक्सियम्स। अच्छा साहब, बिल्डिंग सब स्पेसेस। हम from this point onwards some very important ideas will be discussed. हम किसी भी वेक्टर स्पेस की सब स्पेसेस बनाना चाहते हैं। Here a theorem is discussed in which हम ये क्लेम कर रहे हैं कि कोई वेक्टर स्पेस भी है W1, W2 अप टू WR, ये सारे के सारे सबसेट्स जो हैं ये सब स्पेसेस हैं इस वेक्टर स्पेस के। तो इन तमाम सब स्पेसेस का जो इंटरसेक्शन है वो भी सब स्पेस होगा। एंड वी हैव डिस्कस्ड द प्रूफ ऑफ दिस। क्योंकि ये सब स्पेसेस हैं, दैट इज पार्ट ऑफ द हाइपोथेसिस, इसका मतलब इनमें से हर एक में जीरो वेक्टर तो होगा। इसका मतलब ये कि ये जो इंटरसेक्शन लिया गया है ये नल नहीं हो सकता, इसमें जीरो वेक्टर तो जरूर है। अगर सिर्फ जीरो वेक्टर है इसके अंदर, यानी इन तमाम सब स्पेसेस के इंटरसेक्शन में सिर्फ जीरो वेक्टर है, तो दैट इज द ट्रिवियल सब स्पेस एंड दैट इज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर वी। लेकिन अगर इन तमाम सब स्पेसेस का इंटरसेक्शन जो है दैट contains other vectors as well, तो अगर एक वेक्टर ऐसा है जो इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब है वो वेक्टर हर सबसेट में है। अगर U भी इंटरसेक्शन में है और V भी इंटरसेक्शन में है, तो U भी हर सब स्पेस में है और V भी हर सब स्पेस में है, लिहाजा इन दोनों का सम भी सब स्पेस में होगा। ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 1 जीरो वेक्टर, ट्रिक नंबर 2 कि इंटरसेक्शन इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। आई होप यू गेट दिस पॉइंट कि अगर मैं इंटरसेक्शन सेट के दो वेक्टर्स दे दूं, ओह सॉरी, एक U और एक V, दोनों इंटरसेक्शन में है। इंटरसेक्शन में होने की वजह से U W1 में भी होगा, W2 में भी होगा, WR सब में होगा, V W1 में भी होगा, W2 में सब में होगा। तो जब ये इन दोनों की मौजूदगी हर सब स्पेस में है, तो इन दोनों के सम भी हर सब स्पेस में होगा, क्योंकि सब स्पेस जो है ये वेक्टर स्पेस है और वेक्टर स्पेस होने की वजह से विल बी क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन। अच्छा जी, स्केलर मल्टीपल, तो वी सी दैट स्केलर मल्टीपल, अगर सब स्पेस में U वेक्टर है तो स्केलर मल्टीपल उसमें होगा कि नहीं होगा? क्योंकि U वेक्टर इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब हर सब स्पेस में है, और हर सब स्पेस WI जो है वो सब वेक्टर स्पेस है, तो उसका स्केलर मल्टीपल भी इसके अंदर होगा, एंड दैट इज द सेकंड ट्रिक। इसका मतलब है जो
हमने सेट बनाया है, यहाँ नोटेशन थोड़ी गड़बड़ हो गई है कि बी तो बड़ा सब स्पेस है ना, तो इधर जो मैंने ये बनाया, तो दिस शुड बी रिटन एज डब्ल्यू, दिस शुड बी रिटन एज डब्ल्यू, दिस शुड बी रिटन एज डब्ल्यू. W indicates what? The intersection of all subspace. So this is one way of building subspaces. अगर मेरे पास कुछ subspaces है तो उनका intersection भी subspace होगा. If someone is thinking about union of subspaces, he is free to think about कि अगर मैं इसी तरह union लूँ तो वो subspace होगा कि नहीं होगा. Linear combination. We are introducing the term at this stage formally. V कोई वेक्टर स्पेस है और इसमें कुछ वेक्टर्स हैं u1, u2 अप टू ur, यानी कुछ वेक्टर ले लिए मैंने वेक्टर स्पेस के. जितने वेक्टर्स लिए स्केलर्स के सेट से उतने स्केलर ले लिए और स्केलर 1 मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर 1, स्केलर 2 मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर 2, all added together. So this vector must belong to the vector space, and this is called a linear combination of these vectors. The scalars k1, k2, k3 are called coefficients of the vector this. Later on, we will give them other names also. यानी जो स्केलर्स यहाँ लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनको अभी तो हम सिर्फ कोएफिशिएंट्स कह रहे हैं, मगर लेटर ऑन हम इनको कुछ और भी कहेंगे. एक और वर्ड इस्तेमाल होता है फ्रॉम मोटिवेटेड फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स के ये वेट्स हैं वेक्टर्स के. यहाँ भी इस्तेमाल होगा किस सेंस में, लेटर ऑन वी विल सी दैट. द नेक्स्ट थ्योरम सेज दैट कि मेरे पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स है जो कि नॉन एम्प्टी सबसेट है किसी वेक्टर स्पेस का. Now the set W of all linear combination of these vectors is a subspace of V. यानी ये सेट जो है जो कि इस वेक्टर स्पेस के कुछ वेक्टर्स पर मुश्तमिल है, तो इनके तमाम लीनियर कॉम्बिनेशंस जो हैं उनका सेट बनाऊं जिसको W कहा जा रहा है, उसको मैं क्लेम कर रहा हूं दैट विल बी सबस्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस जिसमें से मैंने ये चंद वेक्टर्स उठाए थे. और दूसरी बात ये कही जा रही है दिस इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस इन द सेंस एनी अदर सबस्पेस अगर मैं V की कंसीडर करूंगा that contains all vectors in this set, then this vector set of all linear combinations of these vectors will be a set of subset of this W prime. इसके प्रूफ डिस्कस करने से पहले let me demonstrate few things. Can you see this whiteboard? Yes, sir. मेरा वेक्टर स्पेस है R3. मैंने दो वेक्टर्स ले रहा हूँ मैं R3 के, 1 1 2 कॉमा 2 1 -1. ये W1 है, ये W2. This is a subset of R3. फाइनाइट सबसेट लिया मैंने इस दफा. अच्छा, जिसको मैं W कह रहा हूँ वो क्या है, वो है K1 W1 प्लस K2 W2. अगर मैं ये इस्तेमाल करूँ W1 और W2 तो क्या बन जाएगा, K1 1 1 2 प्लस K2 2 1 -1.
So the set of all linear combinations will be of what type? K1 plus 2 K2 पहला component K1 plus 2 K2 दूसरा component K1 plus K2 तीसरा component two K1 minus K2. The question is that K1 is any real number, K2 is any real number. तो अब ये जो सेट बना जिसको मैं सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस कह रहा हूँ W1 और W2 के, is it a finite set or infinite set? Sir, infinite set? Infinite because K1 and K2 are any real numbers. अच्छा जी. Is it a subset of R3? Yes, sir. बिल्कुल है. क्या 0 0 0 इस इन्फिनिट सेट में है कि नहीं? बिल्कुल है सर. क्योंकि रियल नंबर्स की आर्बिट्री चॉइस है, लिहाजा K1 और K2 कैन बोथ बी टेकन 0. Now I take one element of this, call it V1, L1 plus 2L2, L1 plus L2, 2L1 minus L2 with what condition? कि L1 और L2 real numbers हैं. And then another vector from this infinite set of vectors. हाँ भाई, कैसे लिखूं इसको? यहाँ पे लेबलिंग के लिए मैंने L इस्तेमाल कर लिया. हाँ, M ले लेते हैं. M1 plus 2M2, M1 plus M2, M 2M1 minus M2. Where M2. M1 and M2 are arbitrary M1 choices and of real M2. numbers. Now what will be the sum of the two? Would it belong to W? Yes, it will. है ना? L1 plus M1 एक स्केलर है प्लस 2 टाइम्स L2 plus M2, ये पहला कंपोनेंट हो गया. सो ये उसी फॉर्म का है जिस फॉर्म का कि ये पहला कंपोनेंट है. A scalar plus 2 times a scalar, a scalar plus 2 times scalar. अच्छा जी. अब मैं अल्फा रियल नंबर्स में से उठाऊं और अल्फा V1 लिखूं, तो जो भी रिजल्ट आएगा would it be in this set? Yes, it will be. For example, I can write it as V1 इस्तेमाल कर रहा हूं ना, तो अल्फा 1 L1 प्लस 2 अल्फा 1 कहां से आ गया? ये अल्फा 1 नहीं है. 2 अल्फा L2 then alpha K1 plus alpha K2 comma 2. Sir, L1 L2 होगा. Oh, yes. So 2 L1 minus L2. So that has the same form. A scalar plus 2 times a scalar plus a scalar, 2 times a scalar, alpha तो लिखा ही नहीं यहाँ पे, minus alpha minus scalar. So that also belongs to. So जीरो वेक्टर भी है, वेक्टर एडिशन के अंडर W क्लोज्ड है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी W क्लोज्ड है. तो एक प्रूफ कंप्लीट हो गया. के लुकिंग बैक लार्जर वेक्टर स्पेस, उसके सिर्फ 2 वेक्टर लिए हैं, उनसे एक सेट बनाया.
उसके बाद दिस इज व्हाट सेट ऑफ all linear combinations of elements in S. This becomes the general form of any vector in the subset of R3. अब ये subset of R3 जो है जो कि infinite set है, that makes a subspace or not. तो हमने देखा 0 0 0 इसमें है, क्यों है? I can take, I may choose what k1 is equal to k2 is equal to 0, जिसकी वजह से 0 0 वेक्टर जो है इस सब सेट ऑफ आर क्यूब में, इन्फिनिट सबसेट ऑफ आर क्यूब में है। वेक्टर एडिशन में ये सबसेट क्लोज्ड है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ये सबसेट क्लोज्ड है, लिहाजा सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एंड the set of all linear combinations of this is the subspace of R3. अब स्टेटमेंट के अंदर जो दूसरी बात लिखी हुई है कि स्मॉलेस्ट सबस्पेस होगा ये, इन द सेंस दैट अगर मैं कोई और ऐसी सबस्पेस लूं जिसमें W के यानी S के सारे वेक्टर्स शामिल हो, यानी कंटेन्स ऑल वेक्टर्स इन S। अगर सिर्फ यही वेक्टर्स हैं इस नई सब स्पेस में वो एक अलग बात है, लेकिन हम इन जनरल कंसीडर करते हैं कि देयर विल बी मोर। अच्छा जी, पहला जो प्रूफ है वो मैंने भी आपके सामने डिस्कस किया कि एक वेक्टर लिया सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस का, दूसरा वेक्टर लिया सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस का, वेक्टर एडिशन करके दिखा दी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके दिखा दी, सब स्पेस कर दिया। अब दूसरी चीज जो है उसके प्रूफ के लिए W प्राइम इज अनदर सब स्पेस ऑफ P एंड कंटेन्स ऑल वेक्टर्स ऑफ S। तो जब W प्राइम में S के सारे वेक्टर्स हैं तो S के वेक्टर्स के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन भी होंगे, क्योंकि W प्राइम सब स्पेस होने की वजह से वेक्टर एडिशन भी उसमें मौजूद है और उसके मल्टीप्लिकेशन भी मौजूद है, लिहाजा सारे लीनियर कॉम्बिनेशन इसके अंदर। तो W प्राइम आल्सो कंटेन्स ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स इन S and possibly other vectors also, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि W is a subset of W prime. Hence, W is the smallest subspace generated, new word, generated by linear combination of vectors in S. Don't try to jump to the feeling that you are not able to understand, you have understood everything. Your understanding is right in between somewhere, and more examples will demonstrate, or exercises will demonstrate whether you get the idea or not. मैंने भी नया टर्म हमने दिया, जनरेटेड। अगर मैं किसी भी वेक्टर स्पेस का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट लूँ तो उसके सारे लीनियर कॉम्बिनेशन जो हैं उससे कुछ जनरेट हो रहा है, और उसके लिए अब हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं span of S denoted by this, and that means set of all linear combination के लिए एक नया नाम हमने इस्तेमाल किया, span of S. Let me go back to the whiteboard. Clear what I've done before and think about R2. And then, I don't know which are the colors. Here are the colors. एक वेक्टर लिया मैंने U और एक वेक्टर लिया मैंने V। अब मैं U को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो या तो U इस तरफ चला जाएगा, छोटा हो जाएगा, या इस तरफ चला जाएगा। What I am saying कि
मैं के यू प्लस एल बी बनाना चाहता हूँ. So what I will find out that there will be a line along you कि इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लूँ तो ओरिजिन से यहाँ मिलने वाला जो वेक्टर बनेगा वो के यू होगा. Whereas original u is up to here, but ku may be larger than u, smaller than u, or negative of u. बिल्कुल इसी तरह से in the direction of v, I will have lu, all vectors in the direction of v, or opposite to that. अब कोई एक वेक्टर यहाँ से उठा लें lu और कोई एक वेक्टर यहाँ से उठा लें ku, और वेक्टर एडिशन कर दें हेड टू टेल और पैराग्राम लॉ. So this represents this vector. Now k and l are any real numbers. Can you think of how many ku plus lv can be generated? Infinitely many. Infinite. In fact, in this situation, I generate every point of R square. So what I claim here that this belongs to R square. And I also say that this is the span of UV. The span of UV belongs to R square, and every point in R square belongs to the span of UV, isn't it? क्योंकि मैं किसी भी पॉइंट को मल्टीपल ऑफ u प्लस मल्टीपल ऑफ v बना के, ये पॉइंट है ना, ये रखता है, ये आर्बिट्री पॉइंट है P. तो मल्टीपल ऑफ v में मल्टीपल ऑफ नेगेटिव u ऐड करके ये वेक्टर बन जाएगा. तो इसके लिए किताबों में अक्सर जो है वो एक ड्राइंग दी हुई होती है, लाइंस पैरेलल टू यू, lines both above and below, and then lines parallel to V, both sides. और ये जो lines हैं इनके intersections, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, they are all made up from multiple of U and multiple of V. So every point on the plane can be written like this. Get my point? So when we say span of U and V in R square, this is the situation. But if I make few changes and say that this is x-axis, this is y-axis, and there is a z-axis, and U and V, just a minute, U and V are in space R3. तो अब बताओ U and V से क्या पूरा R3 जनरेट हो रहा है कि नहीं? Now I'm talking about क्या every point in R3 belongs to the span of UV? The span of UV is like T1 U plus T2 U. Do you remember this structure somewhere before? Yes, sir. Where? Yes, sir. No, sir, structure नहीं sir, मतलब ये अगर
ये चीज देखी है ना आप पहले, T1 V1 प्लस T2 P2, जी सर, इक्वेशन ऑफ अ लाइन में, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, दो पैरामीटर से प्लेन, इक्वेशन हाँ ऑफ सॉरी, प्लेन बनती है। यस इक्वेशन सर। ऑफ अ प्लेन, There it is, x नॉट प्लस। है ना। तो दिस इज अ प्लेन, लेकिन चूंकि हमने ये जो वेक्टर्स लिए ओरिजिन से चल रहे हैं तो लिहाजा इसको हटा देंगे होमोजेनियस। सर मतलब मतलब आर एन सब स्पेस है तो आर एन माइनस वन अगर दो वेक्टर्स हैं उस स्पैन में है तो मतलब वो आर एन सब स्पेस आर पे एन जो को है वो जनरेट नहीं करेगा, कवर वो करेगी। आर एन को कवर नहीं करेगा नहीं करेगा। ना भाई, फ्री स्पेस है ना। हम्म। काश मैं इस बोर्ड से निकलता हुआ ये एक्सेस बना सकता मैं, और जब मैं यू बना रहा हूँ तो यू इज मेकिंग सम एंगल विद एक्स एक्सिस, विद वाई एक्सिस, विद जेड एक्सिस, और जब मैं वी बना रहा हूँ तो ये भी ना एक्स वाई प्लेन में है, ना वाई जेड प्लेन में है, ना एक्स जेड प्लेन में है, स्पेस में है। जब ये स्पेस में है तो ये स्पेस में एक स्लांट प्लेन बना रहे हैं। They are generating a plane something like this. Where there is an XY plane, there is a YZ plane, XY plane, and there is a oh. Now ये जो plane इनसे बन रहा है, किनसे बन रहा है? U और V से। ये कहीं XY प्लेन को इंटरसेक्ट करेगा, कहीं XZ प्लेन को इंटरसेक्ट करेगा, कहीं YZ प्लेन को। तो ये जो इंटरसेक्शन होंगे, फॉर एग्जांपल इस प्लेन का इंटरसेक्शन विद XY प्लेन एक लाइन होगा, XZ प्लेन एक। आप लोगों ने थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है एज अ डिटेल टॉपिक इससे पहले स्टडी नहीं किया है ना। सर किया है, मल्टी सर वेरिएबल कैलकुलस कैलकुलस 3 में किया है। कैलकुलस 3 में किया है, वेरी गुड। हाँ तो मतलब यू कैन विजुअलाइज कि एक R3 में जो एक प्लेन है उसकी ओरिएंटेशन जो है इज नाइदर पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन, नाइदर पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, नॉर विद वाई जेड प्लेन। तो अब इस प्लेन के जो पॉइंट्स हैं वो पूरी R3 के पॉइंट्स नहीं है। तो दिस इज मेकिंग अ प्लेन इन R3 is generating infinitely many points of R3, but they are not all the points of R3. And we have already studied that they make a plane, only a plane in R3. इसी तरह अगर मैं, anyways, for the time being, this is sufficient for our discussion. Uh, Going back to this quickly. Mm. So we have already shown that W is equal to span of S is a subspace of the vector space जिसके कई वेक्टर्स हैं S के अंदर और जिसके सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस लेकर हम सबसेट W बना रहे हैं। The subspace W जो कि span of S is generated by vectors in the set S. R square खुद is generated by the standard unit vector. अगर मैं स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स यू वी की जगह ले लूं तो अब आर स्क्वायर का कोई भी पॉइंट जो है वो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है, किनका? आई और जे वेक्टर्स का। R3 is in fact generated by standard unit vectors, not arbitrary two vectors. So कोई भी पॉइंट R3 में x y z जो है that is written as a linear combination of this. I hope you remember writing down xi plus yj plus zk. I is this, j is this, k is this. A set of all polynomials of degree 2. This is generated by a polynomial 1, a polynomial x, a polynomial x square.
क्यों? ये स्केलर लीनियर कॉम्बिनेशन बन गए 1x और x² के, जिससे कि ये सेट बन रहा है. Given any two vectors, from this point, the actual game begins after developing some concepts, and we'll see things in a deeper perspective. R3 के दो वेक्टर्स हैं, उसके बाद मैंने R3 का आर्बिट्री पॉइंट ले लिया, आर्बिट्री वेक्टर ले लिया, और अब मैं पूछ क्या रहा हूँ कि आर्बिट्री वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू गिवन वेक्टर्स और नॉट. एंड बल्कि कहा जा रहा है कि शो दैट दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u एंड v एंड दिस इज नॉट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ. तो भाई ये कैसे पता चलेगा? वेक्टर u को k से मल्टीप्लाई किया, वेक्टर v को l से मल्टीप्लाई किया, उसको इक्वेट किया 9 2 7 से, और देखा कि इससे एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगी. पहली k + 6l = 9, दूसरी 2k + 4l = 2, तीसरी -k + 2l = 7. उस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा और देखा कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है. The system is consistent and has a unique solution. That is the indicator of being linear combination with value of L is equal to 2 and value of K is equal to -3. तो इस इक्वेशन में K और L की obtained values रख के वेरीफाई करो कि ये linear combination वाकई 9 2 7 है कि नहीं है. तो 9 2 7 is the linear combination of these two, but 4 - 1 8 उसी तरकीब से हमने फिर सिस्टम इक्वेशन बनाया और देखा कि सिस्टम इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है. एंड दैट्स द इंडिकेटर दैट कि गिवन वेक्टर जो है 4 - 1 8 इज नॉट a linear combination. Now we are saying that 9 2 7 is a linear combination of these two vectors. 9 2 7 belongs to the span of these two vectors. 9 2 7 is generated by these two vectors. Whereas 4 - 1 8 is not a linear combination of these vectors. 4 - 1 8 is not generated by these two vectors. 4 - 1 8 is not in the subspace generated by the linear combination of these two vectors. ये सारी इंग्लिश मुझे लिखनी चाहिए, लेकिन किताबों में लिखी हुई पढ़ी. With that, I terminate today's discussion and we'll continue with these discussion on these examples and the theorems coming. In fact, I have covered only half of this article, but you can say that we have launched into the actual deep concepts of linear algebra today. With that, first I stop recording. People are worried about कि क्विज कब होगा और क्विज कब नहीं होगा. मुझे क्विज सिर्फ इसलिए नहीं रहना पड़ेगा कि लोग पढ़ें और फिर क्विज दें. तो कल मैं क्विज लूँगा डिटरमिनेंट्स का और चैप्टर 3 का. सर अगर आप कल लेंगे तो सर पढ़ के देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा सर. हाँ, कितनी अच्छी बात. कल सर क्या कर रहे थे पिछले हफ्ते? सर कल 2 क्विज हैं, 2 असाइनमेंट्स यूं हैं सर. कहाँ जाए एक बंदा सर? एक वक्त में सब चीजें क्लस्टर हो गई हैं सारी. अच्छा, तो ऐसा करता हूँ कि ट्यूसडे को फ्राइडे को सर जितना जी सर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ट्यूसडे की रात 9 बजे. ठीक है सर. मैं अभी अनाउंस कर रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे. ट्यूसडे को रात 9 बजे चैप्टर डिटरमिनेंट्स का और चैप्टर 3 में जो कुछ हमने पढ़ा है उसको